सो ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ आरसी सर्किट। अगर एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, सो हाउ टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट का तो जनरली सब लोगों को मालूम होता है कि टाइम कांस्टेंट इज जस्ट व्हाट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, मतलब आर उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस। सो अक्रॉस या इन एनी RC circuit you can find the time constant. तो अगर a simple circuit is given, like in the first case, if a simple circuit is given in which a resistance and a capacitor is connected and there is a battery of voltage V. So for this simple circuit you can find simply time constant is what, just R into C, resistance and multiplied by the capacitance. तो इसके लिए तो हमारा सेम है। अब सपोज करो अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया है, so this is 10 ohm and here it is 4 microfarad and is connected with a 10 वोल्ट की बैटरी। इसके लिए तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, R into C, that is 10 into capacitance is what, 4 microfarad, so that is 4 into 10 raised to minus 6. So 40 into 10 raised to minus 6 is the time constant, and time constant is the time when 63% of that capacitor is charged. If a capacitor is charging, तो one time constant में वो कितना चार्ज हो जाएगा, 63%, when it is charged by 63%. So the time in which a capacitor is charged by 63%, that time is called time constant. तो for a simple circuit, अब अगर एक सिंपल सा सर्किट है and a battery is connected, then simply you can find the time constant. अब जो हमारा चार्जिंग का एक्सप्रेशन होता है for a charging of a capacitor, Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by RC. So Q naught is the peak value of the charge. उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, and RC you can find, I have already calculated, so time constant here is what, 40 into 10 raised to minus 6. So by substituting this time constant and the peak value of the charge, अब peak value of the charge how we can find, स्टडी स्टेट में इस पे चार्ज कितना जाएगा, तो स्टडी स्टेट में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस जाएगा एट स्टडी स्टेट, इसमें कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, सो टोटल वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज, Q is equal to this total 10 volt is developed across this capacitor. तो Q naught जो हमारा पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज होगा, Q naught is equal to C into V, so that 4 into 10 raised to minus 6 into voltage is what, 10, so that is 40 into 10 raised to minus 6. So this you can substitute here to find the charge at any random time. कोई भी अगर टाइम गिवन टाइम है, then how we can find the charge at that time. So Q is equal to Q naught. Q naught already I have calculated, that is 40 into 10 raised to minus 6, 1 minus e to the power minus t divided by RC. RC भी मैंने कैलकुलेट किया है 40 into 10 raised to minus 6. अब ठीक है, whatever value of the time is given, अगर सपोज करो देता है 1 microsecond, 1 millisecond, so whatever time is given you can substitute this time, that given time here, so you will get the charge, amount of the charge stored across that capacitor. Steady state में when it is fully charged after long time, या at steady state इतना चार्ज आएगा उस कैपेसिटर पे 40 microfarad. But if they are asking to find the charge across this capacitor at any random time, कोई भी random time दे दिया, मतलब वो steady state तक नहीं पहुंचा, जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की इस टाइप से, तो अगर वो स्टडी स्टेट में आ गया तब तो उसमें Q नॉट चार्ज आएगा। लेकिन सपोज करूं यहाँ पे किसी रैंडम टाइम के लिए पूछ लेते हैं, तो जस्ट इन दिस एक्सप्रेशन Q नॉट मैंने ऑलरेडी निकाला सेपरेटली, टाइम कांस्टेंट मैंने फाइंड कर लिया, देन यू जस्ट हैव टू पुट द स्मॉल t हियर, कोई भी रैंडम टाइम दे सकता है, यू जस्ट पुट दैट स्मॉल t हियर एंड यू विल गेट द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस दैट कैपेसिटर। ये तो एक सिंपल सा सर्किट था जिसमें एक ही रेजिस्टेंस एक ही कैपेसिटर है, यू कैन फाइंड द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस दैट कैपेसिटर। अब अगर सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, सेकंड केस, मान लो अगर एक सर्किट है जिसमें इफ देयर आर मल्टीपल रेजिस्टर्स, एक ही रेजिस्टेंस है तो सिंपली यू कैन डू RC, बट इफ देयर आर मोर देन वन रेजिस्टर, मान लो यहाँ पे अपने पास दो रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है एंड वन मोर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। ये हमारा कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का, दिस रेजिस्टेंस इज 10 10 एंड 10, ऐसे रेजिस्टर्स दिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इस कैपेसिटर के लिए फाइंड करना, या इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो दोनों चीजें हम निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज या मैक्सिमम चार्ज व्हिच इज स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, उसको हम निकाल सकते हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट में हमारा जो सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है R into C, तो R में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, बिकॉज एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं, देयर आर 3 रेजिस्टर्स, सो यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब R में ऐसा नहीं कि 10 10 10 ऐड कर दिया 30 हो गया, या केवल इस 10 को ले लिया तो 10 into C कर दिया, तो R यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across this
कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दैट यू हैव टू फाइंड। तो हमको दोनों चीजें निकालनी होगी, टाइम कांस्टेंट सेपरेटली हमको कैलकुलेट करना होगा और पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज। पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज मींस व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, स्टडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा। तो दोनों चीजें हम फाइंड करने वाले हैं। पहले मैं फाइंड करूंगा स्टडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा। तो स्टडी स्टेट में अगर मैं चार्ज निकालता हूं, both the terms I am going to calculate, तो when this capacitor is fully charged ये करंट को ब्लॉक कर देगा, मतलब A और B के बीच में, इस A और B के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो ब्लॉक हो गया, ये फुली चार्ज हो गया। लेकिन ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं तो करंट फ्लोज लाइक दिस, इवन इफ दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, करंट के पास एक रास्ता है, ऐसा फ्लो करता रहेगा। So all the three resistors are active even if this capacitor is fully charged। fully charged हो जाने के बाद इस रास्ते में वो करंट को ब्लॉक करेगा, लेकिन ये रास्ते में ब्लॉक नहीं कर सकता, तो ये रेजिस्टेंस एक्टिव है। So whatever is the voltage developed across this resistance, same voltage is developed across this capacitor। by finding that voltage you can find the charge across this capacitor। पहले हम इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालेंगे, that is Q naught, then we'll find the time constant। अब देखो यहाँ पे पहले Q naught कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 10 10, तो that is 30। I is equal to कितना हो जाएगा, so 20 by 30, that is 2 by 3 ampere। so 2 by 3 ampere का करंट is flowing from this battery। 2 by 3 का एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इधर जाएगा। so you can find the voltage across AB। जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, मैं यहाँ इसको AB कर दे रहा हूँ। so whatever is the voltage developed across AB, whatever is the voltage developed across this resistance, same voltage is developed across this capacitor because ये दोनों parallel में है। so find the voltage across that resistance VAB। तो VAB is what, 2 by 3 into resistance, that is 10। so what voltage we are getting, 20 by 3। once you can get the voltage across this resistor, because this resistance is connected in parallel with this capacitor, so whatever is the voltage developed across this resistance, same voltage is developed across this capacitor। तो यहाँ से हम Q naught निकाल सकते हैं। Q naught peak value of charge, तो Q naught is what, C into V। तो 2 microfarad, 2 into 10 to minus 6 into what voltage we are getting, that is 20 by 3। so 20 by 3 into 10 to minus 6, तो Q naught की वैल्यू हमको मिल रहा है 20 by 3 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज, इस कैपेसिटर पे चार्ज है, पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज आई हैव कैलकुलेटेड। सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द चार्ज एट द स्टेडी स्टेट, देख लो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो वो करंट को ब्लॉक करेगा, तो उस कैपेसिटर के साथ जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में, द रेजिस्टर व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट कैपेसिटर। तो यहाँ पे तो फिलहाल ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं था, वो रेजिस्टेंस मर जाता है, मतलब वो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा एंड रिमेनिंग रेजिस्टर्स एक्टिव हैं। तो ये तीनों रेजिस्टर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मारा नहीं इस सर्किट में। ये तो सिंपल हो गया, और इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एक मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें है, मतलब हाउ टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस दैट कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, तो आप लोग वो देख लेना। तो वहां से हमको ये स्टेडी स्टेट का तो चार्ज हमको मिल गया। नेक्स्ट हियर वी हैव टू फाइंड द आरसी, द टाइम कांस्टेंट। सो सी तो मालूम है, सी का कोटेशन है, सी इज जस्ट 2, बट यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, तो you have to find the equivalent resistance across this capacitor। इस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले क्या करो, इस कैपेसिटर को हटा दो, रिमूव द कैपेसिटर, रिमूव कैपेसिटर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, बैटरी को भी हटा दो, बिकॉज हमको करंट नहीं चाहिए, हमको चार्ज नहीं चाहिए, हमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बैटरी नहीं भी रहता है तो भी आर इक्विवेलेंट तो होता है, रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला, चाहे कैपेसिटर हो या ना हो, बैटरी रहे या ना रहे। तो रिमूव दिस कैपेसिटर, देन कैपेसिटर को मैंने पूरी तरह हटाना है हमको, एंड बैटरी, रिप्लेस दिस बैटरी बाय अ कनेक्टेड वायर। बैटरी को ऐसा नहीं बैटरी को उड़ा दिया, यहाँ पे वायर कट कर दिया, कैपेसिटर को हम हटाएंगे लेकिन बैटरी को हम एक वायर से, कनेक्टेड वायर से रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस, अब बैटरी क्यों हटा रहे हैं, कैपेसिटर क्यों हटा रहे हैं, कैपेसिटर वी आर रिमूविंग कैपेसिटर बिकॉज़ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। बैटरी क्यों हटा रहे हैं, बिकॉज़ अभी हमको चार्ज नहीं निकालना, चार्ज ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सो रिप्लेस बैटरी, बैटरी को हम हटाएंगे एक स्ट्रेट वायर से बाय कनेक्टेड वायर। ऐसा नहीं बैटरी हटा दिया और वहां पे वायर कटा हुआ है, वायर कनेक्टेड होना चाहिए बाय अ कनेक्टेड वायर। ठीक है, अब इस सर्किट का फॉर्मेट कैसा होगा, मैं कैपेसिटर हटा दूंगा। चलो ये कैपेसिटर हट गया, ये दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देयर आर टू रेजिस्टर्स लाइक दिस, ये there is a resistance this and a battery is removed by a connected wire। बैटरी को मैंने हटा दिया, इस बैटरी को हटा दिया, यहाँ पे मैंने कोई ऐसा नहीं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और ये वायर ऐसा कटा हुआ है, ये वायर कनेक्टेड होना चाहिए। So this is what the terminals of the capacitor। I have removed that capacitor। You have to find the equivalent resistance between these two points। मतलब समझो हमारा ये हमारा पॉइंट A और B है। So find the equivalent resistance between these two। ये 10
10 और 10। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि पहले ही तो हम इक्विवेलेंट निकाले थे जब व्हेन यू हैव टू फाइंड द स्टडी चार्ज, सो एट दैट टाइम ओनली आई कैलकुलेटेड आर इक्विवेलेंट। सो वो जो मैंने आर इक्विवेलेंट निकाला वो फॉर दिस बैटरी, इस बैटरी के रिस्पेक्ट में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दैट आई हैव कैलकुलेटेड। तो इफ यू आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस बैटरी या फॉर दिस बैटरी, इस बैटरी के टर्मिनल के रिस्पेक्ट में जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो कितना था 10 + 10 + 10 बिकॉज़ ऑल दीस थ्री आर इन सीरीज। बट नाउ आई एम फाइंडिंग why again I have to find the equivalent resistance because now I am finding the equivalent resistance across the capacitor, not across the battery. Across the battery these three are in series, so directly I have calculated we are getting 30. So across this battery equivalent resistance is 30, but now you have to find the equivalent resistance across that capacitor. उस capacitor के cross हमको को resistance चाहिए because time constant में ये जो R होता है ये बैटरी के across equivalent resistance नहीं है, ये सर्किट का equivalent resistance नहीं है. This is the equivalent resistance across that capacitor. इसलिए मैंने capacitor को हटाया, इस बैटरी को भी रिमूव किया, बैटरी को रिप्लेस किया मैंने कनेक्टेड वायर से. नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब जरा देखो ए और बी के रिस्पेक्ट में ये तो उसके सामने है, पैरेलल में है, ये जो दोनों है ये सीरीज में है. तो इन दोनों को मैं मिटा के यहाँ पे बना सकता हूँ. अगर इन दोनों को मैं हटा देता हूँ तो इस सर्किट को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ. ये जो 20 है इन दोनों को मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक वायर में रेजिस्टेंस कहीं पे भी रिप्लेस करो, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से खिसका के यहाँ पे ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये दोनों 10 को मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ से हटा दिया मैंने. समझो एक वायर अपना ऐसा हो गया दिस वे. अब ये जरा देखो, ये these two are in series, इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा 20. ये जो 20 आएगा रेजिस्टेंस दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद AB. तो ये 20 डायरेक्टली AB से कनेक्ट हो रहा है और ये जो 10 है वो भी AB से डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है. मतलब 10 के टर्मिनल्स भी AB पे हैं और 20 के टर्मिनल भी AB पे हैं. तो ये 10 और 20 दोनों किस में हैं? पैरेलल में. सो R इक्विवेलेंट R अक्रॉस AB इज इक्वल टू व्हाट? 10 एंड 20 बोथ आर इन पैरेलल. ये जो आ रहा है ये कितना आ गया 20, दिस इज व्हाट 10. तो 10 और 20 दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 into 20 because these two are in parallel. So 1/10 plus 1/20, that method you have to use. So 10 into 20 upon 10 plus 20. So what value you are getting? 200/30. That is 20/3. तो देख लो with respect to battery जो हमारा equivalent resistance आ रहा था वो 30 था, लेकिन with for this capacitor across the place of the capacitor equivalent resistance we are getting 20/3. Now you can get the time constant. अब ये तो हमको मिल ही गया. तो time constant कितना हो जाएगा? RC. R कितना आ रहा है? Across the capacitor, not across the battery. ये मैंने जो R equivalent निकाला across the capacitor. That is 20/3 into capacitance कितना है हमारा? 2 microfarad. So 2 into 10 raised to minus 6. So time constant we are getting 40/3 into 10 raised to minus 6. Now you can use that expression. Q is equal to Q naught. Q naught हमारा कितना था? 20/3. So 20/3 into 10 raised to minus 6, 1 minus e to the power minus t divided by RC time constant. तो ये हमारा time constant है. अब देख लो हमको Q naught मालूम है, time constant मालूम है. अगर तुमको स्मॉल t दिया है, if that time is given, कि इतने टाइम पे कितना चार्ज उस कैपेसिटर में स्टोर होगा, तो ये जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल t, you will get the total charge for that particular time. स्टडी स्टेट में नहीं, स्टडी स्टेट में ये चार्ज है. अगर एक रैंडम टाइम देता है, मतलब स्टडी स्टेट में पहुंचने के पहले बीच में कोई टाइम दे दिया है, उस टाइम पे कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, तो Q naught 1 minus e to the power minus t by RC, that RC is the time constant for this circuit. तो यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं if more than one resistors are there in the circuit. एक ही रेजिस्टेंस है a simple RC, but if more than one resistors are there, then you have to find the equivalent resistance across that capacitor. How you can find the equivalent resistance across that capacitor? Remove the capacitor and you have to find the equivalent resistance across that terminal and remove the battery या replace the battery by a connected wire. चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं. मान लो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं, यहाँ पे कैपेसिटर, here is a resistor, one more resistance is connected here and a battery is connected. ठीक है, this battery is of 10 volt, capacitor 2 है, ये हमारा 10 है, ये 10 है और ये 10 है. This is the circuit. You have to find the ये चार्जिंग का एक्सप्रेशन इसके लिए निकालना है, टाइम कांस्टेंट भी निकालना है, पीक वैल्यू पे चार्ज भी निकालना, मतलब तीनों चीजें. You have to find the steady charge, you have to find the time constant for that capacitor and the expression Q is equal to Q naught at any random time what charge is stored. तो first step पहला steady charge Q naught. पहले मैं Q naught निकालूंगा. So how to find the steady charge? When this capacitor is fully charged, जब ये fully charged हो जाएगा तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा इस रास्ते में, तो ये तो रेजिस्टेंस मर जाएगा, केवल ये और ये जिंदा रहेंगे. करंट यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो करंट ऐसे जाएगा, इस टाइप से ऐसे यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा.
ये वाला रेजिस्टेंस मर जाएगा बेचारा। अब ये इधर मर गया तो ऐसा नहीं कि आर इक्विवेलेंट में भी मर जाएगा, उसको नहीं कंसीडर करेंगे, आर इक्विवेलेंट में हम देखेंगे उसको। लेकिन फिलहाल अभी फॉर स्टडी चार्ज व्हेन मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट दैट टाइम दिस रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस गया बिकॉज़ यहां से करंट ही नहीं जा रहा है तो ये मर गया, मतलब इस सर्किट में इसका कोई रोल नहीं है। तो सर्किट कैसा होगा, आर हम निकालेंगे, ये तो मर गया बेचारा स्टडी स्टेट में, तो ये 10 और 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या हो गया 10 प्लस 10 दैट इज 20। नाउ यू कैन फाइंड V, यहां पे चलो 20 वोल्ट की बैटरी ले लो, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/20 दैट इज 1 एंपियर। सो 1 एंपियर का करंट इज फ्लोइंग। नाउ ये हमारा AB है, ये मर चुका है रेजिस्टेंस। सो व्हाटएवर इज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, सेम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सो फर्स्ट फाइंड VAB, तो VAB कितना हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू 1 एंपियर का करंट इज फ्लोइंग इन दिस, तो 10 into 1 दैट इज 10 वोल्ट। सो 10 वोल्ट का पोटेंशियल इज डेवलप अक्रॉस AB, द सेम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। So Q is equal to Q naught, the peak value of the charge, C into V. This is in microfarad. That capacitance is in microfarad. So 2 into 10 raised to minus 6 into whatever voltage it is getting. That is 10. So 20 into 10 raised to minus 6. 20 microcoulomb का charge, इसमें maximum 20 microcoulomb का peak value of the charge. या at steady state, what charge is developed across this capacitor? That is 20 microcoulomb. 20 microcoulomb. हमको steady charge मिल गया. Now you have to find the time constant. So to find the time constant, first you have to find the R equivalent. सेकेंड हमको टाइम कांस्टेंट निकालना, दैट इज R इक्विवेलेंट इनटू C। अब R इक्विवेलेंट के लिए सेम स्टेप, रिमूव दिस कैपेसिटर एंड रिप्लेस दिस बैटरी बाय अ कनेक्टेड वायर। तो चलो मैं इसको हटा के बैटरी को एक रिप्लेस कर रहा हूं। तो अपना सर्किट ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है हमारा, ये कैपेसिटर को मैंने रिप्लेस कर दिया और ये रेजिस्टेंस रहेगा 10 10 10 एंड बैटरी को भी हटा दिया। Clear? So these are the terminals of the capacitor. You have to find the equivalent resistance across this capacitor. That battery is removed by a connected wire. Battery को मैंने हटा दिया है connected wire से. Now you have to find the equivalent resistance across this. अब इस सर्किट में जरा देखो, ये जो 10 है, इसका एक टर्मिनल ये हमारा समझो कि पॉइंट AB है. So if you have to find the equivalent resistance across that capacitor. तो ये जो 10 है इसका 1 एंड A से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा एंड B से नहीं कनेक्ट हो रहा है, दूसरा एंड 10 पे जा रहा है, इधर से भी कनेक्ट हो रहा है। तो अब जरा इस सर्किट को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, इस 10 को मैं रिप्लेस करके यहाँ पे बना देता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जरा इसके बारे में सोचो, इस 10 के दोनों टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ये जो ऊपर वाला है, बीच वाला नहीं, ये 10 इससे पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये वाला 10 बिकॉज़ इसका एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा टर्मिनल भी इधर से कनेक्ट हो रहा है। तो दिस 10 एंड दिस 10, दीस टू आर इन पैरेलल। था रेजिस्टेंस यहाँ पे, बट मैं उसको रिप्लेस करके यहाँ पे बना दिया, सर्किट को ऐसा शो कर रहा हूँ। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच आर इन पैरेलल, विच आर इन सीरीज। तो दिस 10 एंड 10 बोथ आर इन पैरेलल। ये सर्किट को ऐसा शो कर सकते हो कि 10 और 10 पैरेलल में, तो दो को मैं ऊपर बना दे रहा हूँ like this 10 and 10. Then these are the terminals of the capacitor and one more resistance is there, this 10. So ये दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 10 and 10, और उसके साथ ये जो कनेक्शन आएगा उसके साथ इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये वाला सीरीज में है, and these are the terminals of the capacitor. तो पहले इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो। What result we are going to get? That is 20. That 20, अब सोचो सर्किट ऐसा हो गया, यहाँ पे एक 20 है, इधर हमारा एक 10 है, and these are the terminals of the capacitor, ये दोनों टर्मिनल हैं। अब जरा सोचो 20 और 10 किस में कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली दिख रहे हैं आमने सामने, लेकिन आमने सामने मतलब नहीं, वो पैरेलल में हो जाते हैं। दिस 20 एंड 10 आर इन सीरीज बिकॉज़ वन इन कनेक्शन है, एक साइड से वो कनेक्ट हो रहा है, दूसरे साइड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वन इन कनेक्शन है, तो दीस टू आर इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज व्हाट 20 प्लस 10 दैट इज 30। नाउ यू कैन फाइंड द टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट इज व्हाट आर इक्विवेलेंट इनटू सी, दैट इज 30 इनटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना था ना 2 into 10 raised to minus 6. So 30 into 2 into 10 raised to minus 6, that is 60 into 10 raised to minus 6. So time constant is 60 into 10 raised to minus 6. Now you got the time constant, हमको दोनों मिल गया, Q naught भी मिल गया, time constant। अब हम उस एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by tau, the time constant. So Q naught I have calculated the peak value of the charge, that is 20 microcoulomb. टाइम स्मॉल t की वैल्यू रैंडमली कुछ भी दिया रहता है, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट स्मॉल t एंड टाइम कांस्टेंट व्हाट RC, तो मैंने यहां से निकाला। फर्स्ट आई फाउंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय C। इसका थर्ड एग्जांपल,
चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4. अगेन इफ there is a circuit like this, there is a resistance, another resistance, a capacitor, one more resistor is there, there is a resistor, ये हमारे सब resistance and it is connected with a battery. ये हमारे resistors हैं 10, 10, 10, 5, 10 and this capacitor is the 4 microfarad and here a battery of 20 volt is connected here. So in this circuit you have to find the peak value of the charge for this capacitor and its time constant. So do both the terms. First Q naught निकालने वाले हैं. Q naught is the peak value of the charge. तो when this capacitor is fully charged at steady state, इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगा तो ये रेजिस्टेंस मर जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं. तो ये तो गया, नो करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10. R इज इक्वल टू ये दोनों तो एक्टिव हैं बिकॉज करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. यहाँ जाएगा, ऊपर से भी करंट जाएगा, नीचे से भी जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं. यहाँ पे करंट जीरो हो चुका है. दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू टेक दिस रेजिस्टेंस. ये एक्टिव नहीं रह गया एट स्टेडी स्टेट. ये रेजिस्टेंस मर गया, करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दीस टू रेजिस्टर्स. सो ये दोनों दीस टू आर इन पैरेलल. तो 10 और 10 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इफ टू इक्वल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? हाफ. तो 10 और 10 का इक्विवेलेंट हाफ मतलब 5 हो गया. सो 10 + 5, 10 + 5 equivalent of these two is also 5. So what resistance we are going to get? 20. This 20 ohm is the resistance across this battery. बैटरी के अक्रॉस 20 ohm आ रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ डिफरेंट रेजिस्टेंस मिलता है, वो मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा. तो this is what the 20 ohm. Now you can find the charge. So whatever is the charge develop across this AB. AB पे जितना चार्ज आएगा वही चार्ज कैपेसिटर, मतलब AB पे जो वोल्टेज आएगा the same voltage is develop across this capacitor. तो AB का वोल्टेज निकाल लो पहले एंड उसी वोल्टेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये इस रेजिस्टेंस में कुछ मिलने वाला है नहीं बिकॉज़ यहाँ पे स्टेडी स्टेट में करंट जीरो हो चुका है. तो फाइंड I is equal to what? 20/20 that is 1 ampere. So 1 ampere का करंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही 1 ampere ले जाके यहाँ पे इस वायर में भी 1 ampere ही पहुंचा देते हैं. 1 ampere इनिशियल करंट है जो बैटरी से स्टार्ट हुआ, बट एट दिस जंक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो अगर इसमें करंट I है तो इसमें I/2 हो जाएगा. दैट करंट इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, I/2 एंड I/2. So current flowing across AB is not I, that is I/2 because at this junction it is splitted into two parts. So that is I/2. Now you can find the voltage across AB. The voltage across AB is what? 10 into I/2. So that is 5 volt. तो यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है AB पे, वही सेम वोल्टेज इस कैपेसिटर को मिलेगा. तो Q naught, the peak value of the charge across that capacitor. तो Q naught कितना हो जाएगा? C, that is 4 into 5, 20 माइक्रोकूलम. तो 20 माइक्रोकूलम का पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज या मैक्सिमम चार्ज है उस कैपेसिटर. नाउ फाइंड R इक्विवेलेंट. तो R इक्विवेलेंट के लिए सेम स्टेप, कैपेसिटर को हटाओ, बैटरी को रिप्लेस करो. कैपेसिटर को मैं हटा रहा हूँ, ये रेजिस्टर्स ऐसे 10 है, 5 है, यहाँ पे कैपेसिटर हटा दिया मैंने, ये वाला अपना 10 है, इधर एक रेजिस्टेंस है 10 और यहाँ पे भी एक 10 है, ठीक है. एंड बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर. बैटरी को मैंने एक कनेक्टेड वायर से रिप्लेस कर दिया. नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन दीस टू टर्मिनल. तो ये जो 10 और 5 15 है, जरा देखो इस 15 को मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ. ये जो 15 है इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ. तो इस सर्किट को मैं ऐसे ये हमारा 10 और 15 इसको ऐड करूँ, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ. तो फिर वो आसान हो जाता है टू आइडेंटिफाई वेदर व्हिच रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, व्हिच रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. यहाँ पे अपना कितना है 10 और ये कितना है 5. अब जरा ऑब्जर्व करो, ये 10 के दोनों टर्मिनल यहाँ पे इसको भूल जाओ जरा. इस ये 10 भी यहाँ पे और यहाँ पे 15, मतलब ये 10 और ये 15, these three are in parallel. इसके दोनों टर्मिनल इससे भी कनेक्ट हो रहे हैं, इसके दोनों टर्मिनल इससे भी कनेक्ट हो रहे हैं. तो ये और ये these three are in parallel. तो सर्किट को हम ऐसा शो कर सकते हैं, इसको भी मैं ऊपर बना रहा हूँ, इसको ऊपर बना रहा हूँ, मतलब 10 15 और 10. उसके बाद अपना कैपेसिटर के टर्मिनल्स है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है 10 का. These are the terminals of the capacitor where you have to find the equivalent resistance. अब देखो ये 10 15 और 10 are in parallel, so 10 15 10 are in parallel. Find the equivalent of these three and that is in series with this. तो पहले मैं इन तीनों का equivalent निकाल रहा हूँ. तो 1/R is equal to क्या हो जाएगा? 1/10 plus 1/10 plus 1/15. 1/10 plus 1/10 1/5 plus 1/15. What we are going to get? 15 हम LCM ले सकते हैं, so 3 plus 1 4/15. तो R is equal to what we are going to get? 15/4. इन तीनों पैरेलल जो रेजिस्टेंस इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 15/4. दैट 15/4. अब जरा सर्किट बनाओ, ये हमारा कितना है? 15/4
इधर किससे कनेक्टेड है 10 से, एंड देन दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर, ये दोनों टर्मिनल्स हैं। तो नाउ दीज टू आर डायरेक्टली कनेक्टेड, वन साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरी साइड से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फ्रॉम वन साइड दीज टू आर कनेक्टेड, इट मींस दीज टू आर इन सीरीज। तो R equivalent is what 15/4 plus 10. So what we are going to get 40 plus 55/4. This is the equivalent resistance. Equivalent resistance across the terminal of the capacitor. जो equivalent resistance बैटरी के लिए था वो अलग आया था, वो कितना आया था 20 आया था, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस अलग रेजिस्टेंस मिल रहा है, that is 55/4. Now you can find the time constant. तो time constant is what 55/4 into capacitance. Capacitance कितना है यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, तो 4 into 10⁻⁶, 4 is cancel, we are getting 55 into 10⁻⁶. अब दोनों है अपने पास, टाइम कांस्टेंट भी है और पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज भी है। नाउ यू कैन यूज दैट एक्सप्रेशन Q is equal to Q naught 1 minus e to power minus t by RC. Q naught is I have calculated Q naught, I have calculated time constant. अब यहाँ पे स्मॉल t, कोई भी रैंडम टाइम दिया है तो तुम उसके लिए चार्ज की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल t पुट करते जाओगे, ये चार्ज देता जाएगा, बिकॉज Q naught और RC तो हमने निकाल लिया है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट स्मॉल t की वैल्यू हियर, एंड यहाँ पे मैं टाउ ही लिख दे रहा हूँ, RC by the time constant. So Q naught I have calculated, time constant I have calculated, just substitute the value of small t. Small t की वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा उसको पुट करोगे, तो at that particular time you are going to get the charge. जो Q naught मैंने निकाला, that is the peak value of the charge when capacitor is fully charged, when at the time when it is offering infinite resistance. तो सर्किट का रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी डिफरेंट आता है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज डिफरेंट. So when you have to find the time constant, you have to find the resistance, you have to find the equivalent resistance across the plate of the capacitor, and to find the current या स्टडी चार्ज कितना है उसके लिए हमको सर्किट का अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के सामने कितना रेजिस्टेंस है वो हमने निकाला. Then you can find the current, and by using that current you can find the voltage across that capacitor so that you can get the charge. If you have to find the time constant, तो time constant में जो R होता है वो R बैटरी का नहीं, बैटरी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, वो रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट है across that capacitor. So how you can find that resistance? Just remove that capacitor and replace the battery by a connected wire. चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं. फिर से अपने पास मान लो हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देयर इज अ कैपेसिटर, देयर आर टू रजिस्टर्स, वन मोर रजिस्टर इज कनेक्टेड हियर एंड अ बैटरी. ये 10 है हमारा 10 एंड हियर अ 40 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड. दिस कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड. नाउ यू हैव टू फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज हियर एंड द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट. तो पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ये करंट को ब्लॉक कर देगा, ये दोनों रेजिस्टेंस मर जाएंगे. तो ये तो दोनों गए, ये मरने वाले हैं. ये कब मर जाते हैं? इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, नॉट अक्रॉस द कैपेसिटर. कैपेसिटर के टाइम पे तो ये दोनों जिंदा रहते हैं बिकॉज़ वो एक्टिव रहेंगे उस टाइम पे. यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट. जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास रहते हैं तो करंट नहीं भी फ्लो कर रहा है तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा. लेकिन इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बिकॉज़ हमको करंट निकालना होता है ना, तो करंट के टाइम पे जो रेजिस्टेंस जिंदा है तो उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे, जो मरे हुए हैं उनको नहीं निकालेंगे, उनको नहीं इंक्लूड करेंगे. बट इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में जब निकाला उस टाइम तो बैटरी है भी नहीं, करंट भी नहीं है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करने होते हैं. मतलब टाइम कांस्टेंट में जो रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस मरता नहीं, सारे के सारे रेजिस्टेंस कंसीडर किए जाते हैं. लेकिन इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस, बिकॉज़ बैटरी पे निकाल रहे हैं अपन तो हमको करंट निकालना है, तो करंट के लिए जो रेजिस्टेंस जिंदा ही नहीं है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, जितने रेजिस्टेंस जिंदे हैं उन्हीं को इंक्लूड करेंगे. अब देख लो इसमें एट स्टडी स्टेट ये कैपेसिटर रास्ते को ब्लॉक कर देगा, ये दोनों मर गए, ये दोनों जिंदा हैं, तो करंट ऐसा जाएगा लाइक दिस. सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, फर्स्ट फाइंड Q नॉट. पहले अपन Q नॉट निकालेंगे, ये मैं AB बना दे रहा हूं, तो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस AB. तब देख लो कौन कौन से रेजिस्टेंस, ये और ये जिंदा है, तो R कितना हो जाएगा 10 + 10, so that R is equal to 20. now you can find I बैटरी के लिए 40/20, that is 2 एम्पीयर. so 2 एम्पीयर का करंट स्टार्टेड फ्रॉम दिस बैटरी, ये 2 एम्पीयर फ्लो करेगा. अब यहाँ पे टोटल करंट, यहाँ पे इस जंक्शन पे आके करंट स्प्लिट नहीं हुआ बिकॉज़ यहाँ से जो करंट चला है जंक्शन तक आया, उसके बाद वो पूरा करंट ऊपर चला गया. इस वायर में तो करंट जाना नहीं है, तो करंट की स्प्लिटिंग नहीं हुई जंक्शन पे. टोटल करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस AB. तो VAB is what? I into 10, that is 20 volt. so between A and B 20 volt का voltage is developed.
द सेम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर, बिकॉज इसका जो वोल्टेज है वो पूरा कैपेसिटर को ही मिलेगा, इन दोनों को तो मिलना है ही नहीं, ये तो मरे हुए रेजिस्टर्स हैं, तो इनको कुछ वोल्टेज मिल नहीं रहा है, पूरा का पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा है कैपेसिटर को। तो VC भी वही है, VC कितना है 20। नाउ यू कैन फाइंड Q नॉट, Q नॉट इज इक्वल टू व्हाट CV, तो 2 into 10⁻⁶ C into V is 20, that is 40 माइक्रोकूलम, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज। इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है 40 माइक्रोकूलम। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट, टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। तो व्हेन यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर एट दैट टाइम, हमको ये नहीं देखना कौन जिंदा है कौन मर गया, सारे रेजिस्टर्स को कंसीडर करना होगा। टाइम कांस्टेंट which is R equivalent into C। अब चलो पहले R equivalent निकालो, पहला स्टेप क्या करोगे, कैपेसिटर को हटा दो, ये हमारा टाइम रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, दिस कैपेसिटर इज रिमूव, ये दोनों हैं रेजिस्टेंस अभी। अब हम सारे रेजिस्टेंस को लेंगे 10 और ये भी 10 एंड बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर। ऐसा सर्किट देखेगा, बैटरी को मैंने वायर से रिप्लेस कर दिया, कैपेसिटर को हटा दिया। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर अक्रॉस दीस टू टर्मिनल। तो ये जो 10 है इसको मैं यहाँ से मिटा के यहाँ पे बना दे रहा हूँ, भूल जाओ कि यहाँ पे है, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैं पहले शो कर देता हूँ, बाद में तुमको मालूम चले कि मैंने इसको हटाया यहाँ से, मैं इसको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वायर में रेजिस्टेंस कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस रेजिस्टेंस जो यहाँ से था उसको मैंने इधर घुमा के लिया दिया। अब देखने में हमारा आसानी क्या होगी, ये 10 और 10 इसके दोनों टर्मिनल, बोथ द टर्मिनल्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद दिस रेजिस्टेंस, इट मींस दीस टू आर इन पैरेलल। पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, सर्किट को जरा ऐसा शो करो, 10 10, ये 10 है, 10 है, यहाँ पे हमारे टर्मिनल्स हैं कैपेसिटर के, और ये 10 दो है, 10 एंड 10, these are the terminals of the capacitor। now these two are in parallel, तो पैरेलल तो रिजल्ट निकाल लो, तो 10 और 10 का रिजल्ट कितना हो जाएगा 5। तो हमारा सर्किट ऐसा बनेगा, 5 है इधर, इधर हमारे कैपेसिटर के टर्मिनल्स हैं और दो 10 वाले कनेक्टेड हैं, 10 एंड 10। अब देख लो, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स। ये 5 और ये 10 है, these three are in series, एक साइड से कनेक्ट हो रहे हैं तीनों, तो ये तीनों सीरीज में कर दो, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 + 10 + 10 दैट इज 25। तो देख लो बैटरी के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो 20 आया था, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस कितना आ रहा है 25, बिकॉज वो अलग हो जाता है। यहाँ पे बैटरी के टाइम पे क्या होता है, ये दोनों मरे हुए थे, लेकिन कैपेसिटर के टाइम पे वो दोनों जिंदा ही है, मतलब वहाँ पे करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, यहाँ पे बैटरी भी हटा दी है, हम करंट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं देखेंगे कौन सा मर गया कौन सा जिंदा, यू हैव टू कंसीडर ऑल द रेजिस्टेंस एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट। तो ये है हमारा। अब टाइम कांस्टेंट निकालो, तो टाइम कांस्टेंट व्हाट R * C, R इक्विवेलेंट कितना है 25 into कैपेसिटेंस इज व्हाट 2, तो 2 into 10⁻⁶ दैट इज 50 into 10⁻⁶। now you can use that expression Q is equal to Q naught, Q naught कितना है 40 into 10⁻⁶, 1 minus e का पावर minus t divide by this term 50 into 10⁻⁶। now whatever you can use this expression, whatever time is given, कुछ भी टाइम देता है उस टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, you will get the charge, मतलब उस टाइम पे कितना चार्ज उस कैपेसिटर पे स्टोर होगा। पीक वैल्यू पे व्हेन इट इज फुली चार्ज एट दैट टाइम व्हाट चार्ज इज स्टोर्ड, दैट इज 40 माइक्रोकूलम, बट वो तो स्टेडी स्टेट का चार्ज